السلام علیکم ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس چینل پہ ترجمہ قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ کرایا جا رہا ہے، جو اس میں ہم لوگوں کو ایسے قرآن سکھا رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے، کہ جس میں اس نے نہ ہی کوئی اسکول جوائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی گرامر پڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ لینگویج جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل پہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نالج جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی زوم کلاس کے اوپر ایک گرامر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں محمد علی بلوچ صاحب جو ہیں وہ ایک آسان گرامر جو ہے وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جس میں الفاظ کی پہچان کا ایسا طریقہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو آسانی بھی ہو اور قرآن پاک کے معنی جو ہیں وہ سمجھنے میں آپ کو مدد بھی فراہم ہو۔ خیر، ہماری اس کورس کے لیے ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ گرامر پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں یہ ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہماری آن لائن زوم پہ جو کلاس ہوتی ہے ہر فرائیڈے کو رات کو 9:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک، یہ وہاں سے لی گئی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، تاکہ اگر آپ پوری زوم کلاس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، یقیناً آپ لوگ سب کو اسم کے وہ چار پہلو بھی یاد ہو گئے اور مرکب توصیفی بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور یہ مرکب توصیفی ہمیں پتہ ہے کہ کون سے مرکبات میں سے ہے، ناقص مرکبات میں سے پہلا جو ہم نے مرکب پڑھا مرکب توصیفی۔ دوسرا مرکب ہے مرکب اشاری۔ اشاری کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں اشارہ اشارہ کرنا جس میں کسی چیز کی طرف۔ اشارہ کرنا۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا اس میں اشارہ، جو کہ معرفہ اسما کی جو ایک وہ تھی کہ اس میں اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ وہی اس میں اشارہ ہے۔ آج مرکب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ عید کے بعد پھر دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ مرکب اشاری کے بارے میں تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ اور وہ، انگلش میں دس اینڈ دیٹ، یہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ اور اب جو ہے اسماء اشارہ وہ کہلاتے ہیں جس میں اسم کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اچھا، جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا؟ موصوف، صحیح ہے۔ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ جیسے کہ یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے جمع میں نا، وہ لڑکیاں جمع میں، تو اس طرح کے جتنے بھی اشارے کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مرکب بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم مرکب اشاری۔ یاد رہے کہ یہ بھی ناقص ہے، بات پوری نہیں ہو رہی، وہ لڑکے یا یہ لڑکے کیا، آگے بات مکمل نہیں ہو رہی، تو اس یہ ناقص میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ قلم، اب یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور قلم جو ہے مشار الیہ ہے۔ کلیئر بات؟ بہت آسان ہے۔ اب تھوڑا سا ظاہر اسماء اشارہ کو بھی سمجھ لیں۔ اردو میں تو ہمیں یہ وہ پتہ ہے، عربی میں یہ بڑی خوبی ہے کہ عربی میں اگر ایک کے لیے ہے تو الگ اشارہ ہے، دو کے لیے تو الگ اشارہ ہے، جمع کے لیے تو الگ اشارہ ہے۔ یہی فرق مذکر مؤنث میں بھی ہے، اور یہی فرق حالت رفع حالت نصب میں بھی، مطلب نصب و جر میں اکٹھا بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو یہ تقسیم شیٹ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کسی قریب کے لیے، قریب اشارے کے لیے مذکر ہے اور ایک ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ حاذا۔ قریب ہے، مذکر ہے اور مثنیٰ ہے، مطلب دو کے لیے ہے، تو حالت رفع میں حاذان، حالت نصب اور جر میں حاذین، اور اسی طرح قریب میں مذکر، جمع میں تو ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ قریب میں مؤنث کے لیے حاذا مذکر کے لیے تھا تو حاذہ ایک مؤنث کے لیے، حالت رفع میں مثنیٰ یعنی کہ دو، ہاتان، اور حالت نصب اور جر میں ہاتین مثنیٰ، اور جمع ہاؤلائی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قریب دو قسم کے اشارے ہیں، قریب ہوتا ہے، دوسرا بعید ہوتا ہے۔ بعید سے مراد دور، تو بعید میں مذکر کے لیے اب حاذا کی جگہ کیا آئے گا ایک کے لیے؟ ذالکا۔ اچھا، مثنیٰ میں حالت رفع میں ذانکا، اور حالت نصب اور جر میں زینکا، اور اسی طرح جمع میں
उलाइका। उलाई और मुन्नस में दूर के इशारे के लिए, बईद के इशारे के लिए तिलका, का हालत रफा में ताने का, मुसन्ना में, और हालत नसब और जर में तईनी का, और जमा में उलाए का। अब देखिए कुछ चीजें कॉमन है, हाउलाए और उलाए का कॉमन है। और मजीद ये कि इन दोनों में तो तकसीम है हालत रफा और हालत नसब जर की, वाहिद में और जमा में ये तकसीम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ चार्ट दिखाना मकसद है। ये चार्ट हर स्लाइड में आपको आगे मिलेगा ताकि आपकी पहचान हो जाए। चार्ट समझ में आ गया? क्लियर है बात? आगे चलते हैं। मुरक्कब इशारी, अब इसकी थोड़ी सी जो है ना तारीफ हम पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ होते हैं। तमाम अस्माए इशारा, यानी कि जितने भी इशारे के इस्म हैं जो हमने पढ़े पिछले स्लाइड में, ये मारफा हैं। मारफा क्या होते हैं? जो जिसको हमने पूरी तफसील से पढ़ा था, उसकी किस्में पढ़ी थी, इसमें इशारा भी आता है और अल के साथ भी आता है, बहुत सारी तफसीलात हमने पढ़ ली थी। चल मैं ग्रामर दस समझ वक्त नहीं अगर आती याद है तो ये आ कितने जाता है। दूसरी चीज पापा हमने बात देखा, तो रहे अली हमने भाई, देखा वाहिद। अली भाई बीच में इंटरप्शन हुई है और उसमें एक जुमला मेरे कानों में पड़ा है कि जी ग्रामर मुझे समझ नहीं आती, तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि चैनल के ऊपर आप पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है वो मिलेगी। और आज मुझे काफी सारे कुछ हमारे नए स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो रेगुलर नहीं हैं, वो भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनको मैं वेलकम भी कहता हूँ और बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट हैं तमाम पुरानी क्लासों की और आसान कुरान कोर्स की, उससे भी फायदा उठाएं और पूरे ग्रामर जो पुरानी बहुत सारी चीजें जो है वो पुरानी बातों से रिलेटेड हैं, तो उनको जरूर देखें आप। जजाकल्लाह जी। अच्छा ठीक है जज़ाकल्लाह खैर। तो हमने पढ़ा कि तमाम अस्माए इशारा मारफा ही होते हैं। और वाहिद और जमा, जो मैंने बताया ना कि वो उनकी शक्लें वैसी हैं, वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी होते हैं। मबनी अस्मा पढ़ चुके हैं, जो तीन जी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं, उनकी शक्ल नहीं बदलती। आप उसमें नहीं कह सकते हालत रफा में क्या शक्ल है, हालत नसब में क्या शक्ल है, हालत जर में क्या शक्ल है, उनकी शक्ल नहीं बदलती। कौन कौन से? वाहिद और जमा, जैसे कि हाजा हाजिही और हाउलाही, जालिका तिलका और उलाइका, ये अपने उसी शक्ल में रहते हैं, तब्दील नहीं होते तीनों हालतों में। मुरक्कब इशारी में उर्दू की तरह अरबी में भी इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में। वो जो हम क्रॉस लगा रहे थे ना मुरक्कब तौसीफी में, इसमें नहीं है। इसमें जैसे इशारा पहले आएगा, ये हम कहते हैं ना ये लड़का, इशारा पहले आएगा, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो बाद में आएगा। मुरक्कब इशारी में भी मुरक्कब तौसीफी की तरह मुताबिकत जरूरी है। अब इसमें मुताबिकत क्या है? वो इसमें इशारा मुशारन इलैह की मुताबिक होता है। पहले यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको देखा जाता है, फिर उसके मुताबिक इशारा रखा जाता है कि ये इशारा इस पे सही लगेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक लफ्ज हमने ले लिया, एक बस के मुरक्कब ले लिया, उर्दू में जुमला कहते हैं और अरबी में अगर इसको हम कहें मुरक्कब है। ये कलम, ये उर्दू है। अब ये क्या है? इसमें इशारा है। कलम इशारा क्या है? मुशारुन इलैह है, जिसकी इशारा तरफ है इशारा किया जा रहा है। अब इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं। पहली चीज क्या करनी है हमने? मुशारुन कलम इलैह को समझना है, उसके मुताबिक इशारा रखना है। कलम, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि इसमें इशारा तमाम क्या होते हैं? मारफा होते हैं। तो कलम, कलमुन को अगर हम देखें तो एराब के एतबार से वाजिब ये क्या है? हालत रफा में है। जिन्स के एतबार से हमें पता है कि ये मुन्नस के उन चीज़ों में नहीं आता, तो जिन्स के एतबार से इसको हमने डिक्लेयर किया है कि ये मुजक्कर है। अदद के एतबार से ये एक है, हमें एक पता है इसकी जमा आती है। वसत के एतबार से चूंकि यहाँ नकरा है लेकिन इसमें इशारा मारफा होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पहले मारफा में। अल अल कलम कलमू, जब भी इशारे के साथ कभी आ रहा होगा तो अल कलमू के मतलब आएगा, मारफा की हालत में आएगा। वजह क्या है? इसमें इशारा मारफा है। अब ये अल कलमू में मिल गया तो वसत के एतबार से ये हो गया मारफा। अच्छा, शायद आप लोगों को ये अल्फाज कंफ्यूज कर रहे हैं ना, जो नए लोग हैं यकीनन उनके लिए मुश्किल है। तो पिछले असबाक में बिल्कुल इनके पहचान करा के हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अगर उनको एक दफा दोहरा देंगे तो आपको याद हो जाएगा ये क्या है मारफा। जिस इस्म में अल दाखिल हो जाए वो एक किस्म है मारफा की। अच्छा, अब हमने वो चार्ट जो सामने रखना है कि जिसके मुताबिक, ज़ाहिर है आप लोगों को याद नहीं है पिछली स्लाइड, तो ये चार्ट हमने रखा है और साथ में एक निशानी दे दी है कि ये शक्लें तब्दील नहीं होंगी तीनों हालतों में, और ये भी तब्दील नहीं होंगे, बाकी तब्दीली आएगी इनमें। ठीक है। अल कलमू, अब इसमें क्या इशारा रखेंगे हम? ये वाहिद है, हाजा हाजा वाहिद है, हाजा मुजक्कर है, और ये करीब है तो ये मतलब करीब है, तो क्या करीब आएगा? हाजा हाजा हाजा। तो हाजल कलमू। अच्छा, अब ये हाजल कलमो हमने पढ़ा था कि हमदतुल वसल जब आता है, पिछले हरकत से जब मिलाकर पढ़ते हैं तो इसकी हरकत गायब हो जाती है, तो हाजल कलमो लिखने में आता है। अब ये दोनों अलिफ लिखने में आ गए लेकिन पढ़ने में नहीं आएंगे। हाजल कलमो। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये कलमो क्या था? हालत
रफा में। हालत नसब में क्या होगा? अल कलमा। अब अल कलमा तो तब्दील हो गया, लेकिन हाजा अपनी जगह वैसी है। क्यों? क्योंकि ये मबनी है, तीन हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं। ठीक है। हाजल कलमो और हाजल कलमा। अच्छा, हालत जर में क्या होगा ये आप लोग बताएंगे? बताएंगे या मैं बता दूं? हाजल कलमानी। नहीं, हालत जर में ना, ये पेश आ गया रफा में, नसब में कलमी। हाजल कलमी। हाजल कलमी, देखिए इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इसमें तब्दीली आई है। ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं। वो किताब, ये करीब का था, अब ये दूर है। वो हम उर्दू में जानते हैं दूर के इशारे के लिए। तो वो का इसमें इशारा है, किताब जो है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इनके मुशारों ने, तो इसको हम किताबुन असल में लफ्ज है। तो इसको हम पहला काम क्या करेंगे? मारफा बनाएंगे, क्योंकि इसमें इशारा तमाम मारफा होते हैं। अल किताबू। अब अल किताबू को हम एराब और दीगर चीज़ों में देखते हैं, तो हमें पता चल गया कि अल किताबू के आगे क्या लगाना है। एराब के एतबार से क्या है? रफ़ा है। जिन्स के एतबार से क्या है? मुजक्कर है। अदद के एतबार से क्या है? एक है, यानी कि वाहिद है। वसत के एतबार से तो हो गया, अल लग गया। तो ये क्या है? अल किताबू। अब इसमें इशारा क्या लगाएंगे हम? ज़ालिका। मुजक्कर, बईद का इशारा, मुजक्कर का इशारा, वाहिद का इशारा, क्या बना? जालिका। जालिकल ज़ालिका ही किताब। मैंने कहा। जी बिल्कुल ज़ालिका सही। किताब। तो मिला के पढ़ेंगे तो जालिकल किताबू। अच्छा, अब इसमें हालत रफा में जालिकल किताबू, तो हालत नसब में क्या होगा? किताबी। सब में जालिका की शक्ल बदली नहीं होगी, अलबत्ता अल किताबू अल किताब। किताबा हो जाएगा। जालिकल किताब। किताब। और हालत जर ज़ालिका में क्या होगा? किताब। ज़ालिका किताबी। किताबी। जालिकल किताबी। किताबी। यहाँ बताना ये मकसूद है कि ये जो तीनों हैं, ये अपनी शक्ल नहीं तब्दील करेंगे, क्योंकि ये मबनी अस्मा है। ये तीनों हालतों में एक ही शक्ल रखते हैं। पिछले असबाक अगर याद है तो ये कोई मुश्किल सबक नहीं है। अच्छा, यहाँ सबक खत्म होगा। असल में ज्यादा था, मैंने ब्रेक किया। अच्छा किया ब्रेक किया, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें कोई मुश्किल है तो बताइएगा इस सबक में। पिछले सबक का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ फिलहाल, वो नहीं, आपको इसमें रिपीट करना मुश्किल होगा। नहीं है। बहुत आसान है, इसमें इशारे के तौर पर हाँ, है। ये अब आप, आसान है। ये ये चार्ट जो है सबसे मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन करें आप जब हम्म, इस्तेमाल करते जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो हमें याद है, खुद ही याद हो जाते हैं। वैसे तो हमें रट्टा लगाया जाता था, हाजा हाजाने हाजैन हाउलाई, हाजिही हाताने हातैन हाउलाई, जालिका जानिका ज़ैनिका उलाइका, तिलका तानिका तैनिका उलाइका। ये रट्टा लगाया जाता, लेकिन आप लोग पहचान कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त भी पूरा हो गया। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, हिचकिचाए नहीं। सलमान भाई को मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। जो मेरी समझ में होगा मैं आपको रिस्पांस दूंगा। फिर दोहरा दूं, पिछले असबाक को याद रखते चले जाएंगे, आगे आसानी होती जाएगी। अब हमने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं। इस्म को पढ़ा है, उसके चारों एतबारात पढ़ लिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ा है सिर्फ। मुरक्कब तौसीफ़ी को अच्छी तरह हम जान गए, आज पहचान भी हो गई। अब हमने मुरक्कब इशारी शुरू किया है। कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हुई, बहुत मुख्तसर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप देख लेंगे, कुरान के बहुत सारे जो मुरक्कबात हैं उसकी भी पहचान हमने करना शुरू कर दी है। मुरक्कब इशारी को आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि आधे से ज़्यादा कुरान के जो सफ़ात हैं उसमें आपको पहचान होना शुरू हो गई है। शर्त यह कि आपने कुरान को जब पढ़ना है तो उस वक्त ये पहचान करनी है, ये मैंने पढ़ा है, ये फ़लाँ मुरक्कब है, या ये फ़लाँ इसम की फ़लाँ हालत है, ये सब आपको पता हो। तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि मैं खुद से तर्जुमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लास को इख्तिताम करते हैं। अब सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है। हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं, वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ।
میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔